Hello dear student, today our topic is Wheatstone bridge and meter bridge. Okay, so see which circuit is known as Wheatstone bridge circuit. Okay, and the application of Wheatstone bridge is meter bridge. So here we consider 4 resistor, right? You can say P, Q, Q, R, S, and here we use a galvanometer in between this. Okay, now this connected to external battery. You can say V is a potential difference of the battery. Now we can say I amount of current pass through the circuit, right? So at this point you can say it is A, B, C, D. At A point it is divided into 2 parts. You can say I1 and I2. I1 flow through A to B and B to C and A to D and D to C. Okay, and they once again combine to form I, right? So A point, I is equal to I1 plus I2. I1 flow through A, B, C path and I2 flow through A, D, C path. Okay, like this. Now see, we have to apply Kirchhoff's second rule in A, B, D, A path, and then we have to apply the same rule for, you can say, B, C, D, B path, right? So here apply Kirchhoff's second rule. Apply Kirchhoff's second rule for A, B, D, A path. ओके चलो अप्लाई करो तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस I1, सो यू कैन से माइनस I1 इंटू पी. बी टू डी में कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, सो प्लस I2 Q इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यू कैन से I1 P इज इक्वल टू I2 Q. यू कैन से इक्वेशन नंबर 1. चलो नेक्स्ट पाथ इज बी सी डी बी पाथ. ओके सो यू कैन से apply Kirchhoff's second law in BC DB path. तो सेम वे माइनस I1R प्लस I2S इज इक्वल टू 0. माइनस I1R प्लस I2S इज इक्वल टू 0. देयरफॉर I1R इज इक्वल टू I2S. ओके, नाउ टेकिंग अ रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2. 1 and 2. Therefore, I1P upon I1R, I2Q upon I2S. I1, I2 get cancelled. So you can say P upon R is equal to Q upon S. Or you can say P upon Q is equal to R upon S. So when this condition is satisfied, that is P upon Q is equal to R upon S, then no current flow through this galvanometer. यहाँ पर थ्रू आउट हमने galvanometer का में करंट कंसिडर किया नहीं है. ओके, सो हियर व्हेन द रेशियो इज मेंटेन, that is a P upon Q is equal to R upon S, then no current flow through the circuit, right? So this phenomena is known as what? Wheatstone bridge circuit. Okay, अब ये जनरली यूज़ कहाँ पर होता है कि जनरली जब हमें सर्किट सॉल्व करते हैं और Wheatstone bridge सर्किट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो जस्ट फोकस हियर कि फॉर एग्जांपल एक सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से है. ओके, सर्किट का एक छोटा सा पार्ट, यू कैन से 2, 4, 3, 6 and it is a 5. It is in ohm. Okay.
then find out the equivalent resistance between point A and B. ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर व्हिटन ब्रिज वेरीफाई करना है कि व्हिटन ब्रिज सर्किट यहाँ पर अप्लाई होगी या नहीं. सो हियर टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस, दैट इज अ 2/4, दैट इज व्हाट 1/2, and this ratio, that is a 3/6, that is what 1/2. that means this ratio is maintained, दोनों सेम है, तो यहाँ से करंट पास होगा नहीं, तो ये 5 ओम को हम नेग्लेक्ट करेंगे. ओके, देयरफॉर यू कैन से नाउ योर मॉडिफाइड सर्किट 2 ohm and 3 ohm connected in series and 4 ohm and 6 ohm connected in series. So it is a 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm. So ये दोनों हो गए आपके सीरीज में. So 2 plus 3 that is a 5 ohm and it is a 6 plus 4 that is what 10 ohm. Now 5 ohm and 10 ohm connected in parallel combination. तो resistance, equivalent resistance between point A and B, you can say parallel में product by sum. So 5 into 10 upon 5 plus 10, that is a 50 by 15. So 10 by 3. Okay, so it is your answer. Okay, so ये है व्हिटन ब्रिज और सर्किट में हम कैसे अप्लाई करते हैं वो. ओके, अब व्हिटन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है, दैट इज नोन एज मीटर ब्रिज. क्या कहेंगे हम उसको? मीटर ब्रिज कहेंगे. तो मीटर ब्रिज वर्क ऑन दिस व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल. ओके, सो जस्ट चेक इट कि किस तरह से है ये मीटर ब्रिज. ओके, सो जस्ट फोकस हियर. ये एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में भी है, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट. देखते हैं किस तरह से. सो व्हाट इज इट्स यूज और एम? टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर. ये मीटर ब्रिज हम यूज कर रहे हैं. ओके, तो पहले मीटर ब्रिज की सर्किट देख लेते हैं. सो हियर द मीटर ब्रिज, सो द कंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस. Okay, you can say AB is a wire. The length of wire is 100 centimeter, that is 1 meter. That's why it is known as meter bridge. Okay, अब यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल रहेंगे. तो अब आपको क्या करना है कि A एंड B के बीच में हमारी मेन सर्किट यूज होगी, राइट? तो मेन सर्किट हमारी A और B के बीच में क्या होगी? दैट इज अ, यू कैन से it is a battery, key and rheostat, right? ये सर्किट हमारी यूज होगी मेन सर्किट, दैट इज बिटवीन पॉइंट A एंड B. अब ये दो टर्मिनल और ये दो टर्मिनल कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो. एक जगह पर हम रखेंगे अननोन रजिस्टर X और दूसरी जगह पर रखेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस. ओके, और ये जो मिडल टर्मिनल है ये जाएगा गैल्वेनोमीटर एंड देन गैल्वेनोमीटर टू जॉकी. गैल्वेनोमीटर टू कहाँ जाएगा? जॉकी पर. ओके, अब स्विच ऑन करके हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक रेजिस्टेंस निकालना है, राइट? तो दैट इज अ नोन वैल्यू, इट इज अ नोन वैल्यू. और जॉकी से हमें नल पॉइंट फाइंड करना है. नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट कि जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आए. नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट कि जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन
0 आए, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा नल पॉइंट। ये सर्किट को मैं ऊपर ले लेता हूँ, ओके। तो सी बैटरी की रियोस्टेट okay, so here I'll find out the length. You can say it is a L1 and it is a L2. What is a L2? So you can say 100 minus L1. सपोज ये 40 है तो ये क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, राइट। सो इट इज लाइक दिस। सो इट इज जस्ट अरेंजमेंट एंड प्रैक्टिकल ऑफ दिस मीटर ब्रिज। फिर से एक बार कि यहाँ पर A एंड B जो वायर का एंड है वहाँ पर हमारी मेन सर्किट ज्वाइन करेंगे, दैट इज अ बैटरी की एंड रियोस्टेट, ओके। फिर ये दो टर्मिनल है, यू कैन से दिस टर्मिनल पिक क्यू, इट इज RS। पिक क्यू पर हम अननोन रेजिस्टेंस X ज्वाइन करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर RS पर ज्वाइन करेंगे, और ये जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी मतलब एक कंडक्टर। तो यहाँ पर हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकालेंगे, नल पॉइंट फाइंड करेंगे। वी हैव लेंथ L1 एंड L2, ओके। सो अब ये वायर की रेजिस्टिविटी है रो, राइट। वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ओके। तो ये L1 लेंथ जो है इसका रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है तो यू कैन से इट इज़ अ R1 दैट इज़ अ रो L1 बाई A, और ये L2 लेंथ के लिए क्या होगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A, ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, देन यू विल एग्जैक्टली आप इमेज कर सकते हो व्हिटस्टन ब्रिज, ओके। कैसे कि ये है X, यहाँ पर होगा R1, रेजिस्टेंस बॉक्स R2, राइट। सो आपको समझ में आए इसीलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, नो नीड टू ड्रॉ दिस, बट आपको समझ में आए कि ये व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट आप किस तरह से इमेज कर सकते हो। तो यहाँ पर बीच में होगा आपका गैल्वेनोमीटर, ओके। यहाँ पर ये होगा आपका अननोन रेजिस्टेंस X, ये होगा आपका रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और ये होगा आपका रेजिस्टेंस R1, और ये होगा आपका रेजिस्टेंस R2, राइट। यहाँ पर ये सर्किट हो गई व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। आपने नल पॉइंट फाइंड किया है, दैट मीन्स इट इज़ वेरीफाई। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें सो X अपॉन R1 इज इक्वल टू RB अपॉन R2। तो X इज इक्वल टू क्या होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इंटू R1 अपॉन R2, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। व्हाट इज द R1? रो L1 अपॉन A। व्हाट इज द R1? रो L1 अपॉन A। व्हाट इज द R2? रो L2 अपॉन A। रो L2 अपॉन A रो गेट कैंसल, दैट इज द रेजिस्टेंस बॉक्स इंटू L1 अपॉन L2। सो इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट? इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में से सपोज हमने 10 ओम रेजिस्टेंस निकाला है, राइट। अब L1 लेंथ है कोई भी कंसीडर करो, आप 50-50 कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंसीडर 60 and 40। सो L1 इज अ 60 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बराबर है। तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस X इज इक्वल टू क्या होगा? सो X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स इंटू L1 अपॉन L2। 10 ओम, व्हाट इज द L1? 60 अपॉन 40। सो हियर 10 3/2, दैट मीन्स यू कैन से 15 ओम। क्या होगा आपका रेजिस्टेंस? 15 ohm. Unknown resistance is 15 ohm. So it is one of the very important topic, that is the Whitstone bridge, and its application, that is a meter bridge.